Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे: एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज लेक्चर नंबर 15. लेट अस स्टार्ट विद दैट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे. The first one is on the basis of enforceability. The second one is on the basis of creation. The third one is on the basis of execution. The fourth one is on the basis of form. The first category is enforceability. On the basis of enforceability, we have number of contracts and agreements. The first one is valid contract. The second one is void contract. The third one is voidable contract. The fourth one is void agreement. The fifth one, illegal agreement. And the last one is unenforceable contract. इसके बाद second category के अंदर, that is based on mode of creation, we have 3 different types of contracts. The first is express contract. The second is implied contract. The third one is constructive or quasi contract. The third category is on the basis of execution. We have 4 categories of contract. The first one is executed contract. The second one is executory contract. The third one is unilateral contract. And the fourth one is bilateral contract. The fourth category is on the basis of form of contract. इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड वन इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन. और एग्जीक्यूशन के केस के अंदर हम इन 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन के बेस के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को हम फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड वन इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, we will start with executed contract. Executed contract is a contract in which both the parties have fulfilled their respective obligations in the contract. Contract के अंदर 2 पार्टीज की जो जिम्मेदारियां अराइज हुई, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर दिया. In other words, an executed contract is one where nothing remains to be done by either party. दूसरे शब्दों के अंदर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने अब कुछ भी नहीं करना. दोनों पार्टीज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को अदा कर दिया है और अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करने लायक कुछ भी नहीं बचा. जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. Now this contract has completed. The second one is executory contract. Executory contract is a contract in which both the parties have still to fulfill their respective obligations. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने अभी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना है. That is executory contract. Let us take up an example of executory contract. We have with us Mr. Seller. He wants to sell his car. We have with us Mr. Buyer. He wants to purchase the car. Seller says, I want to sell my car for rupees 2 lakh. Do you want to buy it? Seller की तरफ से buyer को एक ऑफर है. Buyer says, I am willing to buy your car. Buyer की तरफ से इस पर्टिकुलर ऑफर की एक acceptance है. Whenever there is an offer and there is an acceptance, we call this thing as that there is an agreement between these 2 parties.
इस केस के अंदर सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार का पोजेशन बायर को डिलीवर करे और ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स को बायर के नाम के ऊपर ट्रांसफर करे। सिमिलरली यहाँ पर बायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो 2 लाख रुपए की पेमेंट सेलर को करे। अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं किया। ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल अभी करेंगे। This agreement will be termed as Executory Contract between Mr. Seller and Mr. Buyer. On the basis of extent of execution, we can divide executory contracts into 2 parts. The first one is Unilateral Contract. Unilateral means one-sided. Here one-sided means जहाँ पर एक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया है। A contract is said to be unilateral where one party has performed his obligation either before or at the time when the contract comes into an existence. एक कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा जहां पर एक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट होते समय ही फुलफिल कर दिया। जहां पर एक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया है, देन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। उस एग्जाम्पल के अंदर सेलर ने कार के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बायर को दे दिए, कार का पोजेशन बायर को दे दिया और कीज भी बायर को दे दी। सेलर ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा का पूरा फुलफिल कर दिया, लेकिन अभी बायर ने पेमेंट नहीं करी। इस केस के अंदर एक पार्टी तो अपनी पूरी जिम्मेदारी फुलफिल कर चुकी है, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना है। जहां पर एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कंप्लीट परफॉर्म कर दे, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल मीन्स दैट इज टू साइडेड। A contract is said to be bilateral if the obligations of both the parties are outstanding at the time of the formation of the contract. They are therefore executory contracts. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर अभी दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना है। जहां पर दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना है, हम उसे नाम देंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। They are termed as executory contract. एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना है और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी को भी परफॉर्म करना है। सो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। नाउ लेट अस समराइज। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन वाज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। In the case of executed contract, both the parties have fulfilled their respective obligations. The second is on the basis of executory contract. यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ न कुछ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी रहती है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट वन इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जहाँ पर एक पार्टी ने अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया, सारी जिम्मेदारियों को परफॉर्म कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी अपनी जिम्मेदारी को परफॉर्म नहीं किया। इन द केस ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज ने अभी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना है। सो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी रहती है। यूनिलैटरल के केस के अंदर एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, लेकिन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को परफॉर्म करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।